اگلی صبح میں نے کالج جانے کی بجائے کلفٹن کی طرف اپنا رخ کیا۔ تاشو بابا کی کٹیا کے باہر اب بھی کافی رش تھا۔ مجھے تقریباً 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ تاشو بابا نے باہر آتے ہی حسب معمول سارے مجمع کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھ کر حسب توقع اس کا جی خوش ہو گیا۔ بول بچہ، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، مگر شاید جو جواب میں دینے والا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا مسئلہ تو ہے تاشو لال، میں نے سخت اور گونجدار آواز میں کہا۔ ایک دم سارے مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ تاشو بابا نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے چھوکرے؟ تاشو بابا نے گھورتے ہوئے کہا۔ تاشو لال، میں تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ تم خود ہی کالا جادو کرتے ہو اور خود ہی اپنے آپ سے بچانے کے لیے رقم طلب کرتے ہو۔ اس سے پہلے تم نے میرے دوست عارف کے ساتھ یہ ڈرامہ رچایا اور اب میرے ساتھ۔ آج میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ تمہارا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا جائے، میں نے اسی طرح گونجدار آواز میں کہا۔ کیا بکتے ہو چھوکرے؟ تاشو بابا نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ میں اس کا راز اس طرح بھرے مجمع میں کھول دوں گا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے بھی اسی طرح غصے میں کہا۔ آج یا تو تم ہمیشہ کے لیے توبہ کرو گے یا پھر میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے، تیری یہ مجال۔ تاشو بابا کا پارا عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے تو گھبرایا کیونکہ مجھے ریاض کا انجام یاد تھا، مگر پھر بھی جی کڑا کر کے کھڑا رہا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ میرا نہ نظر آنے والا محافظ اب کیا کرے گا۔ جیسے ہی تاشو بابا نے پڑھنا ختم کیا، مجھے اپنے ارد گرد کچھ غیر مرئی قوتوں کے دھکم پیل ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر گزر جانے کے باوجود مجھے کچھ نہ ہوا تو تاشو بابا کی آنکھوں میں حیرت ناچنے لگی اور میرا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ میرے محافظ نے اپنا کام کر دیا تھا۔ تاشو لال، اور آزما لے اپنے بیروں کو، میں نے اسی گونجدار آواز میں کہا۔ میں تجھے پورا موقع دیتا ہوں، پھر نہ کہنا کہ میں نے تیرے دل کے ارمان پورے نہیں ہونے دیے۔ تاشو بابا غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر زور سے زمین پر پاؤں مارا۔ ایک دم سے ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے میری طرف لپکا۔ سارا مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا۔ خود میرا خوف سے برا حال تھا، مگر مجھے اعتماد تھا کہ میرا اندیکھا محافظ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اور دور جاتے لوگوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ وہ اژدہا اچانک ہوا میں 15-20 فٹ بلند ہوا اور دھڑام سے زمین پر گرا۔ چوٹ اتنی زوردار تھی کہ اژدہے کے سارے کسبل نکل گئے۔ اس اثنا میں وہ ایک بار پھر اچھلا اور اب کی بار جب زمین پر گرا تو پھر نہ اٹھ سکا۔ تاشو لال پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک 15-16 سال کا لڑکا اس کے جادو کا اتنی آسانی سے توڑ کر رہا تھا۔ تاشو لال نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ایک اور وار کے لیے منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے لٹو کی طرح گھوم کر میری طرف زوردار انداز میں پھونک ماری۔ بے شمار چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کے منہ سے نکل کر تیزی سے میری طرف بڑھنے لگے۔ میں اپنی جگہ کھڑا ہکا بکا اس نئی آفت کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کیڑے مکوڑے میرے جسم کے قریب پہنچے، ایک دم سے مٹی کا ڈھیر بن کر زمین پر گرنے لگے۔ اپنے عمل کا یہ حال ہوتا دیکھ کر اچانک تاشو لال دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو اے عظیم ہستی، تاشو لال کے لہجے میں انتہائی التجا تھی۔ تم کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہو، ورنہ میری برسوں کی محنت سے حاصل کردہ قوتوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ نہیں نہیں، کچھ اور بھی ہے تو نکال لو، میں نے کہا۔ آج میں تمہیں تمہاری ساری حسرتیں نکالنے کا موقع دوں گا۔ اب لوگ پھر دوبارہ ہمارے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، تاشو لال نے لرزتے ہوئے کہا۔ میرے باپ کی بھی توبہ، میں اپنا اور تمہارا مرتبہ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ میرا محافظ یقیناً میرا دفاع کر رہا تھا، مگر میرے پاس وار کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا میرا محافظ بھی وار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر رکھتا ہے تو میں اس کے لیے اسے کیسے مجبور کر سکتا ہوں۔ آخر کو یہ سب سوچ کر میں نے ایک فیصلہ کیا اور پھر گونجدار آواز میں کہا، تاشو لال، میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ تیرا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف کر دوں، مگر اب تمہارے التجا پر مجھے تم پر رحم آ رہا ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں۔ آج تک جتنے لوگوں کو تم نے تنگ کیا، سب کے پیسے ان کو واپس کرو اور پھر کسی کو تنگ نہ کرنے کا وعدہ کرو۔ پھر اگر میں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو پھر کوئی معافی نہیں ملے گی۔ جو حکم سرکار کا، تاشو لال نے عاجزی سے کہا اور جلدی اپنی کٹیا کی طرف چل پڑا۔ پھر اس نے ایک بیگ جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا لے کر باہر آیا۔ ایک ایک کر کے اس نے سب لوگوں کو پیسے واپس کیے۔ جو باقی بچ گئے وہ انہی میں سے کچھ لوگوں کے ذمے لگا کر اس طرح وہاں سے بھاگا جیسے قربانی والا بکرا چھری دیکھ کر بھاگتا ہے۔ اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی۔ لوگوں نے اب آہستہ آہستہ میرے گرد گھیرا ڈال دیا۔ کچھ نے میری شان میں قصیدے بھی پڑھنے شروع کر دیے، مگر میں نے سب کو ڈانٹ دیا۔ خاموش خاموش،
मेरी आवाज़ ने मजमे को इस तरह खामोश कर दिया जैसे चाबी वाला खिलौना चाबी खत्म होने पर बंद हो जाता है। तुम लोग क्यों अपना ईमान इन छोटी मोटी करामात के चक्कर में ज़ाया करते हो? खबरदार, मुसीबतें भेजने वाला और उनसे निजात देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। उसी से मदद मांगो और उसी को तकलीफ और खुशी में याद करो। मैं कुछ नहीं हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे भी ताशू बाबा की तरह मदारी बनाने की कोशिश की तो एक एक की हड्डी पसली एक कर दूंगा। चलो दफा हो जाओ। एकदम से सब लोगों ने दौड़े लगा दी और मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मेरा अंग अंग खुशी से नाच रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वो बन गया था जिसके बारे में मुझे ख्वाब में याद दिलाया जाता था। यही वो खास काम था जिसके लिए मेरा इंतखाब किया गया था और मुझे यही करना था और मुझे इसमें मज़ा भी आ रहा था। घर पहुंचकर बहुत अरसे के बाद मैंने सुकून की नींद ली और खूब घोड़े बेचकर सोया। अगली सुबह से फिर मैं रूटीन में लग गया। मुझे अपना आप बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। उस दिन शाम को मैं शाहजी से मिलने के लिए गया ताकि उनको अपनी कारगुजारी की खबर कर सकूं। शाहजी हस्बे मामूल अपने मुरीदों या रफ़ीकों की मजलिस में बैठे थे। मुझे देखकर प्यार से मुझे अपने पास बुलाया। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गया। उन्होंने एक दो दफ़ा मुझे मुखातिब किया और हाल अहवाल पूछा, मगर जो मैं बताना चाहता था वो बताने के लिए तखलिया ज़रूरी था। मगरिब की नमाज़ पढ़कर जब शाहजी अपने हुजरे में जाने लगे तो मैंने उन्हें रोक लिया। शाहजी, कुछ टाइम मिल सकेगा? एक अच्छी खबर सुनानी है आपको, मैंने आजिज़ी से कहा। ज़रूर सुलेमान मियाँ, बोलो क्या खबर है? शाहजी ने खुश दिली से कहा और फिर मैंने सारी कहानी उनको सुना दी। शाहजी का चेहरा अंदरूनी जोश से सुर्ख हो गया। वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। शाहजी ने बमुश्किल अपने जोश पर काबू पाते हुए कहा, तुमने जिस खूबसूरती से अपने मुहाफिज का इस्तेमाल किया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाखुदा दिल बहुत खुश हुआ और मेरी दुआ है कि तुम इसी तरह खल्के खुदा के काम आते रहो। शाहजी की आवाज़ जोश से लरज रही थी। बस शाहजी, शायद अल्लाह मियाँ ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है। मैंने भी खुशी से भरपूर लहजे में कहा, मुझे अपना मकसूद मिल गया है और मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे इस नेक काम के लिए मुंतखिब किया है। शाह साहब देर तक मुझे दुआएं देते रहे और फिर मैं उनसे इजाज़त लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मसरूर चल रहा था कि अचानक एक ख्याल आया, जो कुछ भी मैंने किया था उसके पीछे मेरा काम और मेरे मुहाफिज का ज़्यादा हाथ था। मुझे कम से कम उसका शुक्रिया ही अदा कर देना चाहिए था। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, शुक्रिया मेरे मुहाफिज दोस्त, ये तो मेरा फ़र्ज था आका। अचानक वही गैर इंसानी आवाज़ फिर सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। मैंने जल्दी से घूम कर देखा, मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। फिर यह आवाज़, यकीनन ये उसी मुहाफिज की थी। इसका मतलब है कि वो मेरी आवाज़ सुन सकता है और ना सिर्फ सुन सकता है बल्कि जवाब भी दे सकता है। तुम कौन हो दोस्त, मुझे अपने बारे में बताओ, मैंने फिर कहा। मैं गुलाम हूँ आका, गुलाम तो गुलाम होता है, दोस्त नहीं। वही गैर इंसानी आवाज़ फिर सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या सवाल करूं कि वो मुझे अपने बारे में कुछ बता सके। तुम कहाँ से आए हो? अचानक मुझे एक सवाल सूझा। वैसे तो मैं कहीं गया ही नहीं था, मगर कहाँ से आपकी मुराद? अगर वतन से है तो मैं सल्तनत सोलोमन का बासी हूँ, उसी गैर इंसानी आवाज़ ने जवाब दिया। तुम गए ही नहीं थे? मैंने हैरान होकर पूछा। तुम कब से मेरे साथ हो? आपकी पैदाइश के वक्त से, उसी आवाज़ ने जवाब दिया। मुझे मज़ीद कोई सवाल नहीं सूझा। ये मेरे लिए हैरत और खुशी की बात थी कि वो ना सिर्फ मेरी हिफाजत कर रहा था बल्कि मेरे बुलाने पर बात भी कर सकता था। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। कुछ देर अम्मा और बाबा से बातें करने के बाद मैं सोने चला गया। सोने से पहले सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने एक बार फिर उसको आवाज़ दी, तुम मेरे पास ही हो मेरे दोस्त? मगर कोई आवाज़ ना आई। मुझे लगा वो चला गया है। फिर भी मैंने एक बार फिर उसे मुखातिब किया, क्या तुम सुन सकते हो मेरे गुलाम दोस्त? जी आका, इस बार उसने जवाब दिया। तुमने मुझे पहले जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने हैरान होकर पूछा। आका, मैं गुलाम हूँ, दोस्त नहीं, उसी आवाज़ ने फिर जवाब दिया। ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? एक लम्हे को मुझे अजीब सा लगा। जब मैं उसे दोस्त कहता हूँ तो वो जवाब नहीं देता और अगर मैं उसे गुलाम कहता हूँ तो वो जवाब देता है। इसी के बारे में सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं कॉलेज रवाना हो गया। रास्ते में आरिफ को भी लिया। कॉलेज में वक्त का पता भी नहीं चला। वापस आकर मैंने फिर उसे मुखातिब किया, ए मेरे गुलाम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जी आका। फौरन उसी आवाज़ ने मुझे जवाब दिया और खुशी की एक लहर मेरे सारे वजूद में दौड़ गई। आप मेरी कैफियत का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से अपनी ज़ात के लिए काम नहीं लिया था। गरीब होने की वजह से खुद को तो दूसरों का गुलाम तस्वुर किया था, मगर कभी दूसरों को अपना गुलाम बनाने का तस्वुर ही नहीं आता था। और कहाँ अब एक गैर मरई ताकत जो हर वक्त मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थी। फिर मैंने कुछ सोचकर उससे फिर सवाल करने शुरू कर दिए, ये सल्तनत सोलोमन कहाँ पर है?
आका, सल्तनत सोलोमन जादूगरों और जिन्नों की मुश्तरका सल्तनत है जो सारी दुनिया पर मुहित है। ये आपकी दुनिया जैसी ही है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी दुनिया उस सल्तनत को नहीं देख सकती और हमारी सल्तनत के बासी आपकी दुनिया को नहीं देख सकते। उसी आवाज़ ने जवाब दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। क्या तुम्हारा कोई नाम भी है ए गुलाम? अचानक मैंने पूछा, क्योंकि बार बार गुलाम पुकारना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जी आका, मेरा नाम अयान है, उसी आवाज़ ने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम इंसान हो या जिन? मैंने अगला सवाल किया। आका, मैं एक जिन हूँ, अयान ने जवाब दिया। अब मेरी समझ में आया कि वो एक जिन है और इसीलिए उसके पास इतनी ताकतें थीं कि एक बड़े अजदहे को उठाकर ज़मीन पर दे मारा। अचानक मुझे एक सवाल याद आया, सबसे अहम सवाल। आखिर वो मेरा गुलाम कैसे बना? आयान, मुझे मालूम है कि इंसान जिन्नात को अपना गुलाम बनाते हैं और इस काम के लिए वो चिल्ले और पता नहीं कौन कौन से अमल करते हैं, मगर मैंने कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया। फिर तो मेरे गुलाम कैसे बने? मैंने सवाल पूछा। आका, मुझे आपकी गुलामी में आपकी वालदा ने दिया था, आपकी पैदाइश के वक्त। आयान के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मेरी वालदा ने? मैंने हैरान होकर पूछा। मगर मुझसे तो मेरी माँ ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। वो इसलिए कि बदकिस्मती से उनको आपके बोलने से पहले ही आपके दुश्मनों ने मार दिया। आयान ने सादा से लहजे में मेरे ऊपर एक एटम बम फेंक दिया। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हैरत ज़दा लहजे में कहा। खुदा के फजलो करम से मेरी माँ जिंदा है, तुम किसकी बात कर रहे हो? आका, मैं आपकी असल वालदा की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आपको जन्म दिया। ये वालदैन जो आपको पाल पोस रहे हैं, ये आपके असल वालदैन नहीं हैं। इन्होंने तो आपको गोद लिया था बरकत अली शाह साहब के तवस्सुत से। आयान ने कहा और मुझे अपने दिमाग की चूलें हिलती हुई महसूस हुई। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं कोई और सवाल पूछता, बस अपने आप में गुमसुम सा था। काफ़ी देर तक मैं गुमसुम रहा। इतने में मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी। बेटा, खाना तो खा लो। माँ ने बड़ी शफकत से कहा। क्या ये मेरी माँ नहीं है? मैंने अपने आप से सवाल किया। नहीं, ये इतने प्यार से मुझे बुला रही है खाने के लिए, ये कैसे हो सकता है कि ये मेरी माँ ना हो? क्या कोई गैर किसी और के बच्चे को इतना प्यार से बुला सकता है? यही सोचता हुआ मैं खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर मैं घर से बाहर निकल आया और इधर उधर गलियों में यूं ही घूमता फिरता रहा। जब सूरज गुरूब होने लगा तो मैंने घर की तरफ रुख किया। घर में अम्मा और बाबा दोनों मौजूद थे। टेलीविज़न पर एक पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा था। मैं भी उनके साथ बैठ गया। कुछ देर के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया और बाबा ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। मैं भी थोड़ा बहुत उनका साथ देता रहा, मगर असल बात यह थी कि मैं उनसे अपने बारे में पूछना चाहता था, मगर मुझे समझ नहीं आती थी कि बात कैसे शुरू करूं। अचानक अम्मा ने पूछ ही लिया, जो काफ़ी देर से मेरा जायज़ा ले रही थीं। सुलेमान, क्या बात है? कुछ गुमसुम लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है? उनकी आवाज़ में फ़िक्र नुमाया थी। जी अम्मा, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा तबीयत बोझल सी है, कोई ख़ास बात नहीं, मैंने जवाब दिया। असल बात ये थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे करूं। क्या उनको आयान के बारे में बता दूं या फिर किसी और तरह से बात करूं? अच्छा चलो, मैं खाना बना देती हूँ, तुम आज जल्दी सो जाओ, अम्मा ने नसीहत करते हुए कहा। अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक ठीक हो जाओगे। जी अम्मा, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। फिर अम्मा खाना बनाने चली गई और बाबा मुझे दुनिया के बारे में अपने तजुर्बात बयान करते रहे। ये उनकी आदत थी, वो मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे, इसलिए वक्तन फ़वक्तन मुझे अपने तजुर्बात बताते रहते थे ताकि मैं उनसे सीख कर एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ कर सकूं। खाना खाकर मैं अम्मा की नसीहत पर अमल करते हुए अपने बिस्तर पर चला गया, मगर मुझे नींद कहाँ आ रही थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद मैंने आयान से मज़ीद मालूमात हासिल करने का प्रोग्राम बनाया। आयान, तुम मौजूद हो? मैंने आयान को आवाज़ दी। जी आका। फ़ौरन ही आयान की आवाज़ आई। मुझे मेरे बारे में कुछ और बताओ, मैंने पूछा। आप हुक्म करें आका, आयान ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। तुमने बताया था कि मेरी माँ को दुश्मनों ने मार दिया, वो दुश्मन कौन थे और उन्होंने मेरी माँ को क्यों मारा? मैंने सवाल किया। ये मुझे मालूम नहीं आका, आयान ने उसी तरह मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। मैं उस वक्त आपकी वालदा के पास आता था जब वो मुझे याद करती थीं। एक बार उन्होंने बुलाया तो वो शदीद ख़तरे में थीं और उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी। कुछ कुव्वतें उनके पीछे थीं, मगर उन्होंने अपने गिर्द हिफाजती हिसार खींचा हुआ था। मुझे तलब करके उन्होंने आपको मेरे हवाले किया और कहा कि मैं आइंदा से तुम्हारा गुलाम और मुहाफिज रहूँगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने बुजुर्ग जिन सोहराब के पास ले जाऊं, वही आपकी परवरिश का कोई बंदोबस्त करेंगे। फिर मैंने आयान के खामोश होते ही पूछा। फिर मैं आपको लेकर सोहराब जिन के पास गया। उन्होंने आपको शाह साहब के पास भेज दिया और फिर शाह साहब ने आपको आपके मौजूदा वालिदैन के हवाले कर दिया क्योंकि वो बे औलाद थे। आयान ने बात मुकम्मल करते हुए जवाब दिया। यानी तुम मेरे माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जानते? मैंने दोबारा अपने मतलब का सवाल किया। आपके वालिद को तो बिल्कुल भी नहीं, आयान ने कहा।
हाँ, आपकी वालदा को मैं जानता था क्योंकि उन्होंने मुझे कैद करके अपना गुलाम बनाया था। कभी कभी वो मुझे बुलाकर अपने कुछ काम करवाया करती थीं, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मुझे कौन मेरे बारे में बता सकता है? मैंने बेचारगी के आलम में पूछा। मैं माजरत खां हूँ आका, मगर इस सिलसिले में मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, आयान ने साफ जवाब देते हुए कहा। मैं समझ गया कि आयान के पास शायद मजीद कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए फिर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर इन नई मालूमात के बारे में सोचता रहा और मजीद उलझता गया। आखिर मैंने तमाम सोचों को दिमाग से निकाला और सब कुछ भूल कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर की कोशिश से आखिरकार मुझे नींद आ ही गई। अगली सुबह उठकर रूटीन के मुताबिक कॉलेज अटेंड किया। फिर वापस आकर मैंने शाजी को मिलने का प्रोग्राम बनाया। खाना खाकर मैं शाजी के मदरसे की तरफ निकल पड़ा। शाजी हस्बे मामूल दरस में मसरूफ थे। मुझे देखकर बैठने का इशारा किया। कुछ देर के बाद वो फारिग होकर मेरे पास आए। क्या बात है सुलेमान, आज इस वक्त पर कैसे आना हुआ? तुम तो जानते हो कि ये वक्त मेरे दरस का होता है, उन्होंने प्यार भरे अंदाज में पूछा। मैं जानता हूँ शाजी, और बेवक्त तकलीफ दही के लिए माजरत ख्वाह हूँ, मगर बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं इंतजार न कर सका। कोई बात नहीं बेटा, शाह साहब ने उसी प्यार भरे लहजे में कहा। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि इस वक्त मेरी मसरूफियत की वजह से तुम्हें नाहक इंतजार की कोफ्त उठाना पड़ती है। नहीं शाहजी, मुझे कोई कोफ्त नहीं होती, बल्कि इस नौरानी माहौल में आकर खुशी होती है, मैंने जवाब दिया। कुछ देर हम दोनों खामोश रहे और फिर मैंने अपनी बात की इब्तदा की। शाहजी, आपको तो मालूम है कि मेरा एक अनदेखा मुहाफिज है। मैं इत्तेफाक से उसके साथ मुखातिब हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि वो एक जिन है, मगर मेरी यहाँ पर हाजिरी का मकसद कुछ और मालूमात हैं जो उसने मुझे दी हैं मेरे अपने मुतल्लिक। जिनके तज़किरे पर शाहजी चौंक पड़े। क्या मालूमात दी हैं? उन्होंने इश्तियाक से पूछा। शाहजी, क्या मैं रहमत बाबा का बेटा नहीं हूँ? मैंने वो सवाल कर ही दिया जो बहुत देर से मचल रहा था। शाहजी कुछ देर सोचते रहे और फिर कहने लगे, क्या तुम्हें यह जिन ने कहा है? उन्होंने पूछा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। मुझे मालूम था कि एक न एक दिन ये राज खुल जाएगा, उन्होंने कहा, मगर मैं रहमत अली के साथ वादे की वजह से चुप था। ये उसकी ख्वाहिश थी कि मैं खुद तुम्हें कुछ ना बताऊं, अलबत्ता उस दिन का इंतजार करूं जिस दिन तुम्हें खुद ही किसी और वास्ते से इसका पता चल जाए। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोले, ये आज से कोई 15-20 साल पहले की बात है कि मैं शेख तबरेज़ी साहब के पास एक शरई मसले पर रिसर्च के सिलसिले में गया हुआ था। मेरी आदत थी कि मैं रोज़ाना असर की नमाज के बाद मस्जिद के कोने में बैठकर दरसे कुरान दिया करता था। एक दिन मुझे शेख साहब ने बताया कि एक जिन भी मेरा दरस सुनता है और मुझसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। पहले तो मैं कुछ डरा, मगर जब शेख साहब ने हौसला दिया कि वो एक शरीफ जिन है तो मैं उसके साथ मुलाकात पर आमादा हो गया। वो जिन अगले दिन मुझसे इंसान के रूप में मिला। मिलते ही उसने मेरी तारीफ़ें की और दरख्वास्त की कि मैं उसे अपनी मुरीदी में ले लूं, मगर उस वक्त तक मुझे मुरीद करने की इजाज़त मेरे उस्ताद मोहतरम से नहीं मिली थी, इसलिए मैंने माजरत कर ली। मगर वो जिन जिसने अपना नाम सोहराब बताया था अक्सर मेरे पास आता रहा। कभी वो मेरे दरस में इंसानी रूप में आ जाता और कभी अकेले में कोई शरई मसला पूछने। एक बार वो मेरे पास आया तो उसकी गोद में तुम एक नौज़ायदा बच्चे की सूरत में थे। उसने मुझे बताया कि तुम एक शरीफ और आला ख़ानदान के चश्मो चिराग हो, मगर इस वक्त मुश्किलात का शिकार हो। कुछ बहुत बड़ी और ख़तरनाक कुव्वतें तुम्हारी जान के दर पे हैं, इसलिए वो चाहता है कि मैं इसकी परवरिश का जिम्मा ले लूँ या फिर किसी के सपुर्द कर दूँ। सोहराब का कहना था कि वो इसकी परवरिश खुद नहीं कर सकता क्योंकि उन कुव्वतों को उसके बारे में पता चल जाएगा। ये ज़रूरी है कि तुम्हें कोई आम इंसान ही पाले और बिल्कुल आम इंसानों की तरह। इतना कहकर शाहजी फिर सांस लेने के लिए रुके, फिर दोबारा बोले, चूंकि तुम्हारी जान को खतरा था और किसी की जान बचाना सवाब और रज़ाए इलाही का सबब बनता है, इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। उन्हीं दिनों रहमत अली मेरे पास बहुत ज़्यादा आया करता था क्योंकि उसकी शादी को 10 साल का अरसा हो गया था, मगर कोई औलाद नहीं थी। डॉक्टरों ने भी कोई हौसला अफजा बात नहीं की थी, इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि वो कोई बच्चा गोद ले ले, मगर वो चाहता था कि इस सिलसिले में मैं उनकी कुछ मदद करूं। तुम्हारी जिम्मेदारी लेते ही मुझे उसका ख्याल आ गया और मैंने उसे बुलाकर तुमको उनके हवाले कर दिया। रहमत अली को सारी बात मैंने बता दी थी और ये उसकी ख्वाहिश थी कि हम खुद तुमको कुछ ना बताएं। जब वक्त खुद ही तुमको इस बात से आगाह कर देगा तो देखा जाएगा, शाहजी ने मुकम्मल तफसील बताते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि मेरा मुहाफिज जिन अय्यान ठीक कहता है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैं उस जिन के बारे में कुछ नहीं जानता, शाहजी ने कहा। अच्छा, तो क्या आप उस जिन को बुला सकते हैं जो मुझे आपके पास छोड़ गया था? मैंने कुछ सोचते हुए कहा। लगता है कि वो मेरे वालिदैन के बारे में बहुत कुछ जानता है। अफसोस, वो जिन सोहराब उस दिन के बाद फिर कभी नहीं आया, शाहजी ने बताया।
मुझे खुद तुम्हारे बारे में जानने का तजस्सुस था, मगर उस दिन के बाद वो जिन कभी मुझे मिलने के लिए नहीं आया। हो सकता है कि वो इस ख्याल से ना आया हो कि तुम्हारे दुश्मन तुम तक ना पहुंच जाएं। शाहजी ने अपना ख्याल जाहिर किया। शाहजी, मैं तो एक बंद गली में आ गया हूं ना, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने अफसरदा लहजे में कहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने ही घर में अपना पता भूल गया हूं। बेटा, मैं तुम्हारे एहसासात समझ सकता हूं, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। देखो, रहमत अली ने तुम्हें किस प्यार से पाला है। क्या कभी उन्होंने तुम्हें एहसास होने दिया कि तुम उनकी अपनी औलाद नहीं हो? उन्होंने प्यार भरे अंदाज में पूछा। नहीं शाहजी, अब असल हकीकत जानकर मैं कुछ और भी उनका ममनून हूं कि उन्होंने मुझे अपने असल बेटी की तरह प्यार और मोहब्बत के साथ पाला है। मैंने जवाब दिया। मगर मैं उन ख्यालात का क्या करूं जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं कि आखिर मैं कौन हूं और मेरे माँ बाप कौन थे। मेरी माँ को दुश्मनों ने क्यों मारा? मेरा मशवरा है कि कुछ देर इंतजार करो, वक्त तुम्हें इन सब सवालात का जवाब दे देगा। शाहजी ने हस्बे मामूल मुझे सब्र की तलकीन करते हुए कहा। मैं जानता था कि ये वक्त शाहजी के दरस का है, इसलिए उनका ज्यादा वक्त ना लेने का फैसला करते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। अच्छा शाहजी, मुझे इजाजत दीजिए, मैंने पहले ही आपका बहुत सा वक्त ले लिया। मैंने कहा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। उन्होंने उसी तरह प्यार भरे लहजे में कहा और मैं इजाजत लेकर वापसी के लिए चल पड़ा। घर आने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपना रुख समुंदर की तरफ किया और पैदल ही तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद क्लिफ्टन पहुंच गया। रास्ता तो मुझे जुबानी ही याद था। समुंदर के किनारे पहुंचकर मैं नरम और गीली रेत पर बैठ गया। मेरा जहन सोचों के भंवर में फंसा हुआ था। इन सोचों से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने आयान को आवाज़ दी। आयान। जी आका। उसी वक्त आयान ने जवाब दिया। मेरे साथ बातें करो, कुछ और बताओ मेरे बारे में। मैंने कहा। आका, मैं हुक्म का गुलाम हूँ। आयान ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। आप हुक्म करें, जो भी मेरे इल्म में हुआ आपको बताऊंगा। क्या मेरे असल माँ बाप के बारे में कुछ जानते हो? मैंने फिर वही सवाल दोहरा दिया। आका, जो कुछ जानता था पहले ही आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। आयान ने उसी तरह मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, तो कुछ अपने बारे में बताओ। मैंने ऐसे ही मौजू बदलने के लिए कहा। मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? आयान ने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। यही कि तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली कौन सी है, वगैरह वगैरह। मैंने पूछा। आका, ये तो आप जानते हैं कि मैं एक जिन हूँ। मेरे माँ बाप भी आम से जिन्नात हैं। आज से 15-16 साल पहले जबकि मेरी शादी आतका से तय हो गई थी और शादी का दिन बहुत करीब था, ऐसे में आपकी वालदा ने मुझे बुलाकर आपकी गुलामी में दे दिया। तब से मैं आपके साथ हूँ। आयान ने अफसरदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो मेरी वजह से तुम्हारी शादी भी रह गई? मैंने अफसरदगी से कहा। मेरी वजह से बहुत सौ ने नुकसान उठाया है। मेरी माँ अपनी जान से गई और तुम अपनी शादी से। आयान ने कुछ जवाब नहीं दिया। एक बार तो मेरे दिल में आया कि मैं उसे आज़ाद कर दूं, मगर फिर ताशू बाबा वाला वाक़या याद करके मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। मैं आयान की मदद से बहुत सौ को मुश्किलात से निजात दिला सकता था। फिर अचानक मुझे सोहराब जिन का ख्याल आ गया। अच्छा, क्या तुम सोहराब जिन को बुला सकते हो? मैंने सवाल किया। नहीं आका, पहली बात तो ये कि वो बुजुर्ग जिन हैं और दूसरी बात यह कि उनकी ताकत मेरे से कम से कम 10 गुना ज़्यादा है। वैसे भी वो बहुत से जादुई अमल जानता है। उसे ज़बरदस्ती बुलाना मेरे बस की बात नहीं है। आयान ने जवाब दिया। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम उनको बता दो कि मैं वही लड़का हूँ जिसे उन्होंने शाहजी की तहवील में दिया था और अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने वालिदैन के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। मैंने तफसील से अपना मकसद बताते हुए कहा। इसके लिए मुझे उनकी खिदमत में जाना होगा। आयान ने कहा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं हो आऊँ? हाँ ज़रूर, मैंने फ़ौरन इजाज़त देते हुए कहा। आका, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक दरख्वास्त करूं? आयान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ ज़रूर, बोलो, क्या बात है? मैंने चौंक कर पूछा। मुझे अपने माँ बाप, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले 15-16 साल हो चुके हैं। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ देर के लिए उनसे मिल लाऊं। आयान ने आजिज़ी से भरपूर आवाज़ में सवाल किया। हाँ हाँ ज़रूर, मैंने फ़ौरन ही उसे इजाज़त देते हुए कहा, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरी हिफाजत की वजह से वो अपने ख़ानदान से दूर रहा। ठीक है आका, मैं 2 दिन तक वापस आ जाऊंगा। आयान ने कहा। अगर इस दौरान आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप एक दफ़ा सूरह जिन पढ़कर मुझे मेरे नाम से आवाज़ दीजिएगा। मैं जहाँ भी हुआ आपकी आवाज़ सुन सकूंगा और फ़ौरन वापस हाजिर हो जाऊंगा। ये ठीक है, वैसे इसकी उम्मीद कम ही है, मगर ये अच्छा किया तुमने कि अपने बुलाने का अमल मुझे बता दिया। मैंने इस अमल को जहन नशीन करते हुए कहा। अच्छा आका, मैं जा रहा हूँ 16 साल बाद अपने माँ बाप के पास। खुदा हाफिज़। आयान ने कहा और फिर शायद वो चला गया। चूंकि मैं उसको देख नहीं सकता था इसलिए बस अंदाज़ा ही था कि वो चला गया है। आयान की कहानी सुनकर मुझे अपना गम कुछ हल्का हल्का सा लगने लगा था।
इसमें कोई शक नहीं कि अपने असल माँ बाप के बारे में जानने की मेरी ख्वाहिश कुदरती थी, मगर हकीकत ये थी कि अपनी असल माँ को खोने का मुझे कुछ खास दुख नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने वैसी ही मुझे एक और माँ दे दी थी जिसने आज तक मुझे असल माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसी तरह से रहमत बाबा की शक्ल में मेरा बाप मेरे पास था। मुझे किसी और माँ बाप की तलाश करने की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी अगर मेरे असल बाप को मेरी फिक्र होती तो शायद वो मेरी माँ की भी हिफाजत कर लेते और मुझे भी हाथ से न जाने देते, या कम अज़ कम मेरी माँ की वफ़ात के बाद वो मुझे तलाश तो कर सकते थे। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे तलाश नहीं किया। इन्हीं सोचों में गुम मैं घर पहुंच गया। आज मुझे अपनी माँ और बाप पर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने बहुत सा वक्त उनके साथ बातें करने में गुजारा, वो भी बहुत खुश थे। अगले दिन एक और ख़ास वाक़या हो गया। हुआ यूं कि मैं अभी कॉलेज के लिए तैयार भी नहीं हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा ने दरवाज़ा खोला तो बाहर से किसी ने पूछा, ये छोटी सरकार का घर है जी? पूछने वाला कोई उधेड़ उम्र शख्स था। कौन छोटी सरकार? बाबा ने हैरतज़दा लहजे में पूछा। वही जो समुद्र पर आए थे और उन्होंने ताशू बाबा को मार भगाया था। पूछने वाले ने कुछ तफसील बताते हुए पूछा। बाबा चूंकि उस सारे वाक़े से लाइलम थे इसलिए उन्होंने जवाब दिया, भाई आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ ऐसी कोई छोटी सरकार वरकार की कोई रिहाइश नहीं है। वो शख्स कुछ देर असरार करता रहा मगर फिर चला गया। बाबा ने दरवाज़ा बंद किया और दुकान पर जाने की तैयारी करने लगे। मैंने ये सारी बात सुन ली थी और हैरान भी था कि ये कौन आ गया जो मुझे ना सिर्फ जानता है बल्कि मेरे इस वाक़े से बाखबर है जो मेरी तानिस्त में बहुत दूर एक ऐसे इलाके में हुआ था जहां मुझे कोई नहीं जानता था। मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। अभी मैं अपनी गली की नुक्कड़ पर ही पहुंचा था कि अचानक एक आवाज़ ने मेरा साइकिल रोक लिया। छोटी सरकार, मेहरबानी करके मेरी अर्ज सुन लें। वही आवाज़ थी और एक उधेड़ उम्र शख्स खड़ा मुझे लजाजत से पुकार रहा था। क्या बात है भाई साहब? मैंने उनके पास जाकर पूछा। छोटी सरकार, मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मैं जानता हूं कि मेरी मुश्किल का हल सिर्फ आप कर सकते हैं, इसलिए मैं पूछता पाछता आपके दर पर हाजिर हुआ हूं। मुझ बदबख्त पर रहम करें। उसने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में हाथ बांध कर कहा। इर्द गिर्द के लोग हैरत से हमें देख रहे थे। मैंने जब ये महसूस किया तो फौरन वहां से चलते हुए कहा, अच्छा आइए किसी जगह बैठकर बात करते हैं। वहां से करीब ही एक छोटा सा बाग था। मैंने अपना रुख उसकी तरफ कर दिया। वह शख्स चुपचाप मेरे साथ चलता गया। जब हम बाग में पहुंच गए तो एक जगह ज़मीन पर बैठते हुए मैंने पूछा, हाँ अब बताइए कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और आपको मेरे घर का पता कहाँ से मिला? सरकार, मैं उस दिन वहीं क्लिफ्टन पर था जब आपने ताशू बाबा के छक्के छुड़ाए थे। उस शख्स ने तफसील बताते हुए कहा। मैं भी अपनी गर्ज की खातिर गया था मगर मेरी बारी आने से पहले ही आप आ गए और फिर सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस दिन तो हम लोग बहुत खौफजदा थे इसलिए फौरन भाग गए, मगर बाद में सोचा कि आपको तलाश करके आपके पांव पकड़े जाएं ताकि आप ही इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद करें। आपका मसला क्या है? मैंने पूछा। अगर मैं कोई मदद कर सका तो ज़रूर करूँगा। सरकार, मेरी छोटी बेटी 12 साल की है। कुछ अरसे से उस पर साया है। वो बैठे बैठे अजीब सी हरकतें शुरू कर देती है। कभी कभी उसमें इतनी ताकत भी आ जाती है कि बड़ी बड़ी वजनी चीज़ें यूँ उठा लेती है जैसे उनका वजन एक तिनके से ज़्यादा ना हो। बहुत डॉक्टरों को दिखा चुके हैं मगर कोई अफाका नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी बुजुर्ग या आमिल के पास जाया जाए। हमने बहुत बुजुर्गों और आमिलों को भी दिखाया है। पिछले 1 माह से इन्हीं चक्करों में हैं मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि अब वो मुसलसल इसी हालत में रहने लगी है। हम उसको एक कमरे में बंद करके रखते हैं ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उस आदमी ने तफसील बताते हुए कहा, आपका नाम क्या है? अचानक मुझे याद आया कि मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। मुझे सुल्तान अली कहते हैं, उसने अपना नाम बताते हुए कहा। सुल्तान अली साहब, बात यह है कि मैं कोई बुजुर्ग या आमिल नहीं हूँ, बस एक ज़रिए से मुझे एक ताकत हासिल हो गई है मगर अभी मैं खुद भी उसके इस्तेमाल से नावाकिफ़ हूँ। मुझे 2 दिन का वक्त दो, फिर मैं चलकर तुम्हारे घर जाऊँगा और जो भी मुझसे हो सका मैं करूँगा। मैंने उसे हकीकत हाल से आगाह करते हुए कहा। मुझे झूठ और बनावट से सख्त नफरत थी। अयान का तारुफ मैंने इसलिए नहीं करवाया था कि कहीं सुल्तान साहब घबरा ना जाएं। जो हुक्म सरकार का, सुल्तान अली ने आजिज़ी से कहा। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि जितनी जल्दी हो सके आप उसके इलाज के लिए वक्त निकाल लेते। बाकी नजराने की आप बिल्कुल परवाह न कीजिएगा, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास। नजराने की मुझे कोई हाजत नहीं है। मैंने फौरन ही उसकी तौसीह करते हुए कहा, मैं ये काम अगर करूँगा तो खालिसतन नेकी समझकर, मुझे इसमें कोई लालच नहीं है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह आपको इसकी जजा दे। उसने उसी आजिज़ी से कहा, आप ऐसा करें परसों तशरीफ़ ले आइएगा। मैंने कहा, मगर आप जोहर की नमाज के बाद आइएगा क्योंकि बाबा उस वक्त दुकान पर होते हैं और मैं उनको अभी इस चक्कर में नहीं लाना चाहता। जो हुक्म सरकार का, सुल्तान अली ने कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ।
اس کے جانے کے بعد میں روٹین کے مطابق کالج گیا۔ وہ دن اور اسے اگلا دن بھی بغیر کسی خاص بات کے گزر گیا۔ تیسرے دن ایان واپس آ گیا۔ صبح جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو اس نے مجھے کان میں بتایا کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ چونکہ مجھے سہراب جن سے ملنے کا بہت انتظار تھا، اس لیے میں جلدی سے کالج جانے کے بہانے باہر نکلا اور اسی باغ میں جا کر بیٹھ گیا جہاں میری ملاقات سلطان علی سے ہوئی تھی۔ ایان، مجھے جلدی سے بتاؤ کہ کیا سہراب جن نے ملنے کے لیے آمادگی ظاہر کی یا نہیں؟ میں نے فوراً ہی پوچھا۔ آقا، سہراب جن کو کسی نے 15 سال پہلے قتل کر دیا، ایان نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کیا؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ جی آقا، ایان نے کہا۔ میری معلومات کے مطابق جب وہ آپ کو چھوڑ کر واپس گیا تو اس سے 1-2 دن کے بعد ہی کسی بہت ہی طاقتور جن